ভারত কি বাংলাদেশকে সাহায্য করতে পারলো না? যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞায় বেকায়দায় পড়তে হচ্ছে সত্যি সত্যিই বাংলাদেশকে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য রাশিয়ার পাঠানো সেই জাহাজ হলদিয়া বন্দরেও মাল খালাস করতে পারবে না, ফিরে যেতে হচ্ছে সেই জাহাজকে। এবার কি করবে বাংলাদেশ? যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞায় এভাবেই ভেস্তে যাবে একের পর এক কাজ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है कि बांग्लादेश और इंडिया की जो दोस्ती है वो अब खतरे में है, उसमें दरार पड़ चुकी है और ये अब दोस्ती टूटती हुई नजर आ रही है। वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है, मैं नहीं कह रहा भाई, और वो ये भी गोदी मीडिया नहीं कह रहा, वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई इंडिया ने चीट किया है बांग्लादेश को। भाई क्या चीट किया है, क्या उसने कहा है, क्या धोखा दिया है, वो आपको मैं आखिर में वीडियो के अंत में भी बताऊंगा कि किस तरह से पहले हाँ और फिर ना, यानी पहले कह दिया यस और बाद में कह दिया नो, हुआ क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से बांग्लादेश से पहले फायदा लिया और फिर जब उसका टाइम आया यानी इंडिया का, हिंदुस्तान का, फिर उन्होंने जवाब दे दिया है। पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अहम होने जा रही है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि मेरा और आपका जो राब्ता है यूं ही बहाल रहे, हम यूं ही आपस में बातचीत करते रहें और मैं और मेरी टीम आपके लिए लेटेस्ट न्यूज लेकर आते रहें। और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लें जी, वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। এই মুহূর্তে সবথেকে বড় আপডেট সেই জাহাজকে কেন্দ্র করে হচ্ছে, যে জাহাজ মোংলা বন্দরে ভিড়তে পারেনি, হলদিয়া বন্দরে ফেরার কথা ছিল। হলদিয়া বন্দরে মাল খালাস করার কথা থাকলেও মাল খালাস না করেই নাকি ফিরে যেতে হচ্ছে ওই জাহাজকে। এরপর ভারত আর বাংলাদেশের সম্পর্কের কি হবে সেটা নিয়ে নাকি প্রচুর জল খোলা হচ্ছে। জল খোলা হওয়ার সত্যি কি কোনো কারণ রয়েছে? মানে বাংলাদেশ এবং ভারতের সম্পর্ক কি একটু হলেও কোথাও বিকৃত হতে পারে এই জাহাজকে কেন্দ্র করে? কি হতে যাচ্ছে এরপর? সেই জাহাজকে কেন্দ্র করে কিছু কথা, লেটেস্ট আপডেট থাকছে এই রিপোর্টে, আপনি সঙ্গে থাকছেন। প্রথমেই যে প্রশ্নটা আসে যে ভারত কি বাংলাদেশকে সাহায্য করতে পারলো না? যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞায় বেকায়দায় পড়তে হচ্ছে সত্যি সত্যিই বাংলাদেশকে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য রাশিয়ার পাঠানো সেই জাহাজ হলদিয়া বন্দরেও মাল খালাস করতে পারবে না, ফিরে যেতে হচ্ছে সেই জাহাজকে। এবার কি করবে বাংলাদেশ? যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞায় এভাবেই ভেস্তে যাবে একের পর এক কাজ বাংলাদেশের। ভারত বড় ভূমিকা রাখতে পারবে না বাংলাদেশের জন্য, ভারতের উপর রাগ বাড়বে বাংলাদেশের। যদিও ভারতের এ ব্যাপারে কিছুই করার নেই, ভারতের নিজস্ব কিছু কূটনৈতিক নীতি রয়েছে এবং সেই নীতি মেনেই ভারত চলবে। ভারত যদি হলদিয়া বন্দরে জাহাজটিকে মাল খালাসের অনুমতি না দিতে পারে, তার পেছনেও এবার থাকবে ভারতের নিজস্ব কোনো কূটনৈতিক বড় কারণ। কোনো দেশের জন্য, কোনো দেশের ভালোর জন্য, কোনো দেশের স্বার্থের জন্য ভারত তো নিজের কূটনীতিটাকে বিঘ্নিত করতে পারে না এবং ভারত সেটা করবে না, কূটনৈতিক মহল তাই বলছে। রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্রের জন্য রাশিয়ার পাঠানো জাহাজ মোংলা বন্দরে ভিড়তে পারেনি যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞায়, এবং ভারত সেই সময় স্পষ্ট করে না বললেও ভারত যে আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা মানছে না এটা ভারত ভাবে ভাবে বুঝিয়ে দেয়। হলদিয়া বন্দরে ওই জাহাজ ভিড়বে বলে বলা হয় এবং তারপর সেখান থেকে মাল খালাস করে সড়ক পথে বাংলাদেশে সেগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলেও বলা হয়। কিন্তু লেটেস্ট আপডেট এটাই, ভারতেও মাল খালাসের কথা থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি বা হচ্ছে না। মার্কিন নিষেধাজ্ঞার ওই রুশ জাহাজ বিপরীতমুখী। হলদিয়া বন্দরে 14 দিন অপেক্ষা করার পর পণ্য খালাস না করেই ভারতের জলসীমা ত্যাগ করতে হচ্ছে ওই জাহাজকে। তবে কি রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মালামাল নিয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে জাহাজটিকে? ভারত কেন পারল না জাহাজ থেকে মাল খালাসের অনুমতি দিতে? কি সেই কূটনৈতিক কারণ? এটা ঠিক যে ভারত যদি এমনটা করতে পারত তবে কোনো অসুবিধাতেই পড়তে হতো না বাংলাদেশকে। ভারত কোনো দেশের নিষেধাজ্ঞা মানতে রাজি ছিল না, জাহাজটিকে হলদিয়া বন্দরে ভিড়তে দেওয়ার সিগন্যাল ব্যর্থ হয়েছে, এমনটাই লেটেস্ট আপডেট। এখন বাংলাদেশ কি করবে? কে সাহায্য করবে বাংলাদেশকে? কিছু ভূরাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে নিষেধাজ্ঞাভুক্ত জাহাজটিকে ভারত বন্দরে মাল খালাসের অনুমতি দিতে পারছে না বলে জানা যাচ্ছে। বহুল আলোচিত এই জাহাজ গ্রহণে বাংলাদেশ এবং ভারত উভয়ের প্রতি অনুরোধ করেছিল রাশিয়া। ভারত এটা করতে পারল না। তবে কি এবার মস্কোর সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হবে ভারতের, নাকি অন্য কোনো সমঝোতা রয়েছে? এখনো পর্যন্ত এদিকে সেফ জোনেই রয়েছে বাংলাদেশ।
কারণ আগেই মোংলা বন্দরে জাহাজটিকে ভিড়তে দেয়নি দেশটা। নতুন করে সমস্যা তৈরি না হলে বাংলাদেশ কিছুটা সেফ জোনে। দিল্লির সঙ্গে মস্কোর বোঝাপড়া অত্যন্ত স্বতন্ত্র, কিন্তু এরপরেও নয়া দিল্লি আর ওয়াশিংটনের নতুন সমঝোতার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। কূটনৈতিক মহল বলছে আমেরিকা শুধু নিজেদের স্বার্থের কথা ভেবে বাংলাদেশের ক্ষতি করতে চাইছে। ভারতকেও হাতে আনতে চাইছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে ভারতকে সরিয়ে দিতে চায় আমেরিকা। তবে ভারতের নিজস্ব কূটনৈতিক নীতি রয়েছে, তারা যেটা মনে করবে সেটাই তারা করবে। যখন দরকার হয়েছে রাশিয়া থেকে নিজেদের পণ্য কিনেছে আমেরিকা, এখন বাংলাদেশের দরকারে নিষেধাজ্ঞা। व्यूअर्स, आपने देखा वेस्ट बंगाल मीडिया किस तरह से बता रहा है कि इंडिया ने बांग्लादेश को कैसे चीट किया है, किस तरह से धोखा दिया कि अपनी पोर्ट के ऊपर उन्होंने जहाज जो शिप आ रही थी सामान लेकर वो नहीं उतरने दिया रशिया का। और असल स्टोरी है क्या वो मैं अब आपको बताने लगा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरा तवज्जो से सुनिएगा। आपको पता है कि जो रशिया है उसके ऊपर पाबंदी है, सैंक्शंस लगा रखी है अमेरिका ने। यूरोपीय यूनियन में जो रशिया है उसके एक्सपोर्ट्स, उसके शिप जहाज नहीं जा सकते। तो अब आपको पता है कि अमेरिका के साथ बांग्लादेश के भी ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और डायरेक्ट अब बांग्लादेश भी जो रशिया से कोई भी चीज़ मंगवा नहीं सकता। लेकिन उनका शिप आ गया बांग्लादेश के मंगला पोर्ट के ऊपर सामान लेकर रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट का। आपको पता है कि वो रशिया ही बना रहा है रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, और उसमें आपको बताएं कि एक जो हिस्सेदार कह लें या लाइज कह लें वो इंडिया भी है, यानी उसमें वो भी काम कर रहा है कोई 10 to 20%। लेकिन अब वो जो शिप सामान लेकर मंगला पोर्ट पर पहुंचा तो बांग्लादेश ने कहा कि हम आपका सामान नहीं ले सकते क्योंकि सैंक्शंस हैं, अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रेशर बना रखा है, तो हम नहीं ले सकते। अगर हम आपसे ये सामान, ये प्रोडक्ट्स ले लेते हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए आया है, तो फिर अमेरिका हमारे ऊपर पाबंदी लगा देगा, हमारी एक्सपोर्ट्स रोक देगा। जितनी भारी एक्सपोर्ट्स होती है अमेरिका और यूरोपीय यूनियन में, तो बांग्लादेश की 80% गारमेंट्स और टेक्सटाइल की होती है, वहीं से तो रेवेन्यू 80% जनरेट करता है। तो फिर बांग्लादेश ने क्या किया, बांग्लादेश ने कहा कि हम एक तरीका है हमारे पास, वो क्या है, हम एक और रास्ता निकाल लेते हैं कि इंडिया की पोर्ट पर ये सामान चला जाए, पहले हम वहां से ले आएंगे। क्योंकि ऑलरेडी जो इंडिया है, भारत, वो रशिया से ऑयल भी इंपोर्ट कर रहा है, उसको वीट भी उसने इंपोर्ट किया, उसको कोई खतरा नहीं है, उसको कोई प्रेशर नहीं है। जब बात की बांग्लादेश ने इंडिया के साथ कि आप ये शिप अपने पोर्ट पे उतार लें, सी पोर्ट पे, वहां से हम ले आएंगे, तो फिर इंडिया ने कहा चलें ठीक है हम ऐसा कर लेते हैं। लेकिन जब पोर्ट पहुंची टाइमली, तो फिर इंडिया ने भी जवाब दे दिया, यानी हम ये जो माल आया है इसको खलास नहीं होने देंगे अपनी पोर्ट पर। ये जो शिप आया तो इसको लेकर के अब जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो रशिया के साथ भी अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकता, क्योंकि रशिया ने कह दिया था अगर आप हमारा सामान नहीं उतारने दे रहे तो फिर हमारे जो ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं, बहुत खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन पहले इंडिया ने हाँ की, फिर ना कर दी। इससे जो बांग्लादेश और इंडिया के व्यूअर्स जो ताल्लुकात हैं वो अब खतरे में पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके जवाब में अब बांग्लादेश बहुत कुछ कर सकता है। अब इंडियन मीडिया भी डरा हुआ है और सरप्राइज दे सकता है बांग्लादेश, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो बांग्लादेश के हाथ में हैं आपको पता है, और चाइना बांग्लादेश के साथ मिला हुआ है और कुछ भी कर सकता है। अब बांग्लादेश क्या करेगा, बांग्लादेश चाइना के जरिए वो अब सामान मंगवाएगा, शिप वहाँ जाएगी, फिर वहाँ से मंगवा लेगा, क्योंकि चाइना तो दोस्त है बांग्लादेश का। ये अब जो इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है, जो मैंने आपके सामने ये तस्वीर खींची है। व्यूअर्स, कैसी लगी ये वीडियो, इसके बारे में आपने फीडबैक जरूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।